السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، پرتاپ گڑھ سے پھر سے ایک کال آیا جو کہ پہلے کبھی افضل بھائی سے کبھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بریلوی ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں۔ بہرحال انہوں نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں جو ہوں بریلوی ہوں اور میرے خاندان میں سب دیوبندی ہیں۔ اللہ بہتر جانے، وہ جانے، ان کا ایمان جانے کیا معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے کسی شخص کی بات کرائی، کوئی مولانا تھا، عبدالعلیم یا پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ مولانا ہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے۔ اس آڈیو میں آپ حضرات ان مولویوں کی، ان ملا جیوں کی اوقات دیکھ لیں کہ یہ کسی بھی جگہ کہیں بھی یہ بات نہیں کر پاتے ٹک کر۔ پہلے تو دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، راہ فراری اختیار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ بہرحال مگر دیوبندیوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر و ناظر مانے، دیوبندیوں کے نزدیک وہ مشرک ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، گمراہ ہے۔ مگر بہرحال اس دیوبندی مولوی علیم نے، عبدالعلیم یا کیا نام ہے اس کا، بہرحال اس شخص نے قبول کیا، تسلیم کیا۔ پھر علم غیب پر بات ہوئی، علم غیب پر اس نے انکار کیا۔ بہرحال اب اس سے میں نے پوچھا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے، یہاں تک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا علم بھی جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ بولا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال آپ حضرات پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی، کیسی ہو گئی۔ لاسٹ میں اس نے فون ایک دوسرے شخص کو پکڑوا دیا جس کا کال تھا، فون تھا۔ اس بندے نے کہا کہ تم نے جو ہے یہ چینل پیسہ کمانے کے لیے بنایا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نزدیوں کے چینل چل رہے ہیں، جتنے بھی دیوبندیوں کے چینل چل رہے ہیں، کیا یہ انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے بنائے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ میں نے تو دیوبندیوں کو ننگا کرنے کے لیے چینل بنایا ہے، اور مجھے پھر دھمکی دے رہا تھا کہ کب آ رہا ہے یہاں پرتاپ گڑھ، دھمکی دے رہا تھا شیطان کا پتر۔ بہرحال ان نزد کی ناجائز اولادوں میں ہمت نہیں ہے جو مجھ سے کسی بھی عقیدے پر بات کر لیں، لایانی باتیں کریں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ خیر، اس شیطان کے پتر کی اس نزدیکی حقیقت کو دیکھ لیں، کس طرح دائیں بائیں بھاگ رہا ہے، کس طرح پھنس گیا۔ یہ کہیں بھی ٹک کر بات ہی نہیں کرتے۔ بدبخت کی ناجائز اولادیں یہ صرف لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنے آتے ہیں، لوگوں کا وقت برباد کرنے آتے ہیں۔ یہ نزد کی ناجائز اولادوں میں اتنی ہمت نہیں ہے جو مجھ سے کسی بھی عقیدے پر بات کر سکے۔ ان میں کوئی ایسا دیوبندی پیدا نہیں ہوا، کسی دیوبندی عورت نے ابھی تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو طریقے سے، صحیح سے، اچھے سے مجھ سے بات کر سکے کسی بھی عقیدے پر۔ ان کے تو مرچی لگ جاتی ہے جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ تھانوی کافر ہے۔ تھانوی کو ماننے سے، پہچاننے سے بھی انکار کر رہا تھا کہ تھانوی کون ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ گفتگو کو پورا سنیں اور فیصلہ کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ کن سے؟ کون ہے؟ حافظ ہیں، حافظ مطلب حافظ؟ مولانا۔ اچھا، مولانا اپنی جماعت کے؟ نہیں، مطلب دیوبند سے پڑھے ہیں وہ۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ لو بات کر لو۔ اچھا، لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، کیا نام ہوا آپ کا بھائی جان؟ السلام علیکم۔
वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जी जी मैं आप सलाम किया भाई, मैं सलाम कर रहा हूँ आपसे, आप जवाब नहीं दिए अभी तक। जी जी, अगर आप हक पर हैं तो आपके लिए भी सलामती हो। क्या हूँ? आप देवबंद से ताल्लुक रखते हैं ना? अरे मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, बताइए। सुन्नी हनफी बरेलवी या देवबंदी? देवबंदी कौन होता है? आप बरेली हम शरीफ से ताल्लुक रखते हैं ना? आला हजरत हम रहमतुल्लाह अलैह हम प्रताप पर ताल्लुक रखते हैं। देवबंदी किसे कहते हैं? मानते होंगे ना? जी थानवी जी को काफिर मानते होंगे ना? किसको? मौलाना अशरफ अली थानवी। तो क्या हुए? मौलाना कहाँ के हैं ये? ये दारुल उलूम देवबंद जानते हैं आप? दारुल उलूम देवबंद, वो हाँ, अशरफिया, देवबंद? दारुल उलूम अशरफिया ना? नहीं जनाब, हाँ सहारनपुर देवबंद। हाँ सुना हूँ मैं। हाँ, तो क्या हुआ फिर? मौलाना अशरफ थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इनको जी जानते जी हैं ना? जी, हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो इन लोगों को आप काफिर मानते हैं ना? काफिर है, मोदी को जानते हैं, मोदी है, योगी है, अमित शाह है, ये हमारे हैं, इनको काफिर मानते हैं। तो भाई वो बहुत बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी अशरफ थानवी, मौलवी कासिम ननौतवी, ये बुजुर्ग आदमी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पायक तो हिंदुस्तान की आजादी में बड़ा उनका किरदार रहा है। आप क्या मानते हैं? मैं तो काफिर मानता हूँ। अच्छा अच्छा, क्यों वो कलमा नहीं पढ़े थे क्या? वो गुस्ताखे रसूल हैं। गुस्ताख रसूल कैसे होते हैं? कलमा पढ़ने के बावजूद भी गुस्ताखियां करते हैं, दीन इस्लाम के कलमा, खिलाफ हैं। अच्छा, दिन इस्लाम के खिलाफ जी, क्या करते हैं? ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर का इनकार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का इनकार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जमाने के एतबार से खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी और के जो है रहमतुल्लिल आलमीन होने का नजरिया रखते हैं। और रहमतुल्लिल आलमीन होने के मतलब किस पर नजरिया रखते हैं? एक मिनट, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का इनकार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के झूठा होने का जो अकीदा रखते हैं, मावल्लाह कहते हैं खुदा झूठ बोल सकता है और खुदा वो सब काम कर सकता खुदा है। झूठ बोल सकता है? हाँ हाँ हाँ, अरे भाई ये तो आप ऐसा लग रहा है आप ही इनकार कर रहे हैं इस किस्म की आप बात कर रहे हैं। एक काफिर के लिए जो काफिर वाकईतन काफिर है, जो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है, तो ये बात तो अभी नहीं कहता है कि क्या कहते हैं कि कोई अल्लाह का इनकार करे, कोई भगवान का इनकार करे, तो आप इनकार करते हैं सारा सर। आप आलिम है ना? हाँ हम आलिम है भाई। जी जी जी, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कहाँ से फारिग हैं आप बताइए, तो बता ही रहे हैं, हम दारुल उलूम देवबंद की फारिग है, बताइए। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं और इतने बीले बन रहे थे, मौलवी अशरफ थानवी को नहीं जान रहे थे? किसको? अरे अशरफिया का हम बात कर रहे थे, अशरफिया के मतलब से अशरफिया का आप बात कर रहे हैं, मैं तो किसको नहीं जानता, बताइए, सभी तारीख गिना देता हूँ। मैंने कहा था कि मौलाना आप कहाँ फारिग हैं? गुस्सा मत कीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। अरे हजरत मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ फारिग हैं? मैं तो आपसे बहुत देर से मुंतजिर से बात करने के लिए आपके दीदार के शर्फ हासिल करना चाहता हूँ मैं। जी जनाब, मैंने भी देवबंदियों में पढ़ाई की थी। माशाअल्लाह। 7 साल से ज्यादा मुझे निकले हुए हो चुके हैं, ठीक है। 15 साल से ज्यादा मैं इन लोगों में रह चुका हूँ। जी 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 हाँ, और मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, इनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छी तरह आप जान लिए होते तो आप आज क्या कहते हैं कि जो मुल्क के हालत इतने बदतर, इतने बदजन हो चुके हैं, आज लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी आज ही का मसला देख लीजिए, कोई मना रहा कोई नहीं मना रहा है, आप इस किस्म की बात कर रहे हैं और खुद ही देख रहे फिर परस्ते आप पड़े हुए हैं। आज मुल्क हमारा क्या कहते हैं कि ऐसे दहाने खड़ा हुआ है कि हमें एक होने की जरूरत है, और आप इतने बड़े काबिलियत कमी कोताही निकाल रहे हैं। और एक इंसान चांद देखे, चांद नजर आने पर है ना, तो जिन लोगों ने चांद देखा उन्होंने ईद की, जिन्होंने नहीं देखा नहीं, इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई शिरक है। अरे भाई बताइए आप नहीं, किसने देखा है? आप देखे नहीं देखे? एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मसला कुफ्र का है, जो आपने चांद की बात छेड़ी है, ये मसला कुफ्र का है।
हम आपसे कुफर की बात ही नहीं की है, कुफर के आप शुरू कर दिए। आपने ये कैसे कह दिया कि आप आइए, ये आइए, वो आइए, कोई ईद मना रहा है, कोई नहीं मना रहा है? अरे जिन्होंने ईद देखी, अरे मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो अभी मौजूदा हालात जो है उसको आप देखें, उसको पेश नजर रखें, आपको क्या काम करना चाहिए उसकी फिक्र होनी चाहिए। आप तो क्या कहते हैं काफिर कौन है और क्या कहते हैं करने की ख्वाहिश की, पहले तो ये बताएं। अरे भाई आपके क्या कहते हैं कि जाबिर भाई हमारे हैं, उन्होंने कहा कि हजरत से बात कर लीजिए। एक क्या कहते हैं कि कोई क्या होता है इन्ना आता ही बोले, क्या कहते हैं कि हमें तरकीब नहीं आती। मैंने कहा ठीक है भाई, इनकी तरकीब करवा लेते हैं। तरकीब करा लेते हैं, इन्ना आता ही ना कि तुमसे तरकीब नहीं आती, तो तरकीब के लिए हजरत। अच्छा, तो मदरसे में, तुम्हारे मदरसे में क्या पढ़ाया था तुमको? अरे भाई हम यही बात है, आप हमसे बड़े आलिम इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं तो अकीदे पर बात करता हूँ, तुम्हारे इल्म पर तो मेरा एतराज है ही नहीं। क्या क्या चीज? देवबंद के 4 अकाबिर काफिर हैं। अगर आपके पास इल्म होगा, अगर आपके पास इल्म होगा, आप जवाब देंगे। मैं तो आपसे आपको बड़ा मानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे क्या कहते हैं। अच्छा, तो मेरे शागिर्द बनने आए हो ना? जी, मेरे शागिर्द बनने आए हो? हाँ, मैं आपके शागिर्द बनने आया हूँ। बिल्कुल, आप तरकीब बता दीजिए मुझे, थोड़ा हम भी इस्तेफादा हासिल कर लें। अच्छा जी, तो बहरहाल मैं बता तो दूंगा, मगर मेरा वो मौजू ही नहीं है। और नहीं, अरे यही तो एक, अगर आप आलिम है तो इस फौरन को बताना चाहिए। हम तो चाहे जिससे पूछते, हमसे जो बड़ा होता हम पूछ लेते उससे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो सब चीज भी बताऊंगा कि इसका माना, मतलब इसका तर्जुमा क्या है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप आलिम बन गए, आप मौलाना बन चुके हैं, और आपको यही नहीं पता कि सूरह कौसर का और इन्ना आतैना ये सब जो है पुराने पाक में जो तर्जुमे हैं, ये पढ़ाए नहीं गए? अरे भाई, एक आलिम क्या कहते हैं कि आलिम है तो हो सकता है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी कोई इंसान भूल चूक हो, कोई गलती ना हो, और अपने बहस पूछ ले तो इसमें हर्फ क्या है? नहीं, अच्छा, तो मेरे शागिर्द बनने आए हैं, तो चलिए मैं आपको इसका माना मतलब बता देता हूँ। जी, तरकीब बताइए बस। थानवी जी को काफिर कहेंगे? अरे भाई, हम आपसे क्या कहते हैं कि आप तरकीब पूछ रहे हो, थानवी काफिर बना रहे हो तुम। अरे मैं तो थानवी को काफिर कहता हूँ, और उसके कुफ्र पे ही मैं तो आप कहते हो ना, मैं तो उनको अपना शेख मानता हूँ। अरे तो तुम जब अपना शेख मानते हो तो फिर तुम्हारा, एक मिनट, तुम्हारा मेरा झगड़ा किस चीज पर है? अकीदे पर या हमारा कहा? आप हमारे भाई है। मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं तुम जैसे को भाई नहीं मानता। आप नहीं मानते हैं ना, यही बात है। असल में असल बात ये है कि जो काफिर होता है ना, असल बात ये है कि जो काफिर होता है उसके दिल में क्या कहते मोमिन की जगह होती नहीं है, और हम तो मोमिन है, हमारी दिल जगह है आपके लिए। मगर पुराने पाक में साफ साफ आया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। हाँ, ए महबूब, आप इन काफिरों से फरमाइए, हाँ, ला आबुदु मा ताबुदून, हाँ, ना मैं पूजता हूँ जो तुम पूजते, और ना तुम। कुल या अय्युहल काफिरून का माना मतलब याद है, मालूम है? अरे हम खूब समझ रहे हैं, आप बताइए तो। हाँ, दूसरा भी आबुदु कौन सी सेगा है? ये रहमानिर रहीम, आबुदु कौन सी सेगा है? अरे ये सेगे पे बात कर रही हो मेरी जान? अरे मेरी जान बताइए कि पूरा जवाब दीजिए ना। आप हमारा, मैं तो आपको उस्ताद मान रहा हूँ मेरी जान। हाँ मेरी जाने मन, तुम्हारा बताइए, पर हमला नहीं है। हाँ, समझी? जी बताइए। मेरा इख्तिलाफ तुम्हारे इल्म पर नहीं है, अकीदत है तुम्हारा। पापा जी आपका तो, अरे आपका कोई अकीदे नहीं है, जितने शंकर उतने मंकर, तो आपके क्या कहते हैं उसूली बुनियाद है, आप जहाँ पर वही क्या कहते हैं बात और याद दिला। शंकर कंकर का नाम लेकर, क्या कासमी का नाम आपने सुना होगा? तो उसका पहला पैगंबर शंकर। अभी तो मैं सिर्फ आपका नाम सुना हूँ, नूर हफीज साहब कौन है? मैं तो आपको क्या कहते हैं बुलाना चाहता हूँ अपने यहाँ, भाई प्रोग्राम करवाता हूँ, आप आइए, हमारे आपका इस्तकबाल है, ताकि हमारे यहाँ अकायद गड़बड़ी हुई है आप उसको दुरुस्त करा दें। तो फिर हमारा वाला अकीदा रखिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार अता किया गया है। अल्लाह के नबी, आप नबी को बिल्कुल नहीं मानते हो, आप नबी को 1% नहीं मानते हो। हाँ, बहुत सही कर रहे हो तुम, अल्लाह से पनाह मांगो एकदम। अच्छा ये बताइए भाईजान, आप एकदम मोहब्बत करते हैं ना?
अरे इसमें तो अभी आपको शक है क्या? देवबंदी होकर के दादलों में सारे कोई मोहब्बत न करे, हाफिज कुरान को मोहब्बत न करे, अल्लाह से कैसे कुरान दे देगा? ये बताइए, नमाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया है, तो जिसको हुजूर का ख्याल नमाज में आया, क्या वो मुशरिक हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। कौन कहता है? क्या आप हो जाते हैं क्या? एक मिनट, आपके घर से आपको ऑनलाइन नहीं कर दी? आपके घर से जवाब दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अरे आपके बुजुर्गों ने किताब का नाम सिराते मुस्तकीम, इस किताब में लिखा माज़अल्लाह के जिना के वसवसे से अपनी बहुत अच्छा किसी भी बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों को कमाई रखी हुई है। चुपिए, खामोश रहिए, डरना बनिए। अरे हजरत आप, लेकिन आप जवाब दीजिए, जो माना बता रहे थे बनिए। ठीक है, मैं जानता हूँ देवबंदियत के बड़े तर्जुमान आए, बड़े जो है मूंछों वाले जिनकी मूंछों पर चिराग जलता है, वो लोग आए, मगर अल्लाह नूर से कभी बात नहीं कर पाए ईमान और अकीदे पर। तो तुम्हारे चुपिए ना, बकवास करे चले जा रहे हो। प्यार से पहले मेरी बात आपसे, तुम्हारे बुजुर्ग इस्माइल देहलवी है ना? मैं क्या कर रहा हूँ? बुजुर्ग देहलवी है ना? आपको जो सवाल कर रहा हूँ उसको बताइए आप। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए, तुम्हारे बुजुर्ग इस्माइल देहलवी हैं या नहीं? बात मत काटिए ना, बात पूरी करिए आप। देख रहे हैं मुसलमान। अरे यार ये कौन शैतान है यार? अफजल भाई। अरे इतने बड़ा शैतान सामने पड़ गया है। हाँ भाई अफजल भाई बात करिए। मैं मेरी बातों का जवाब कहाँ दे रहा है? अरे मुझसे जवाब दीजिए बात पे। आप एक मिनट हाँ। अरे चुगत घामड़, जो तू कहना चाह रहा है वो मैं कह देता हूँ। तू जो चुगत कर रहा है, चुगत घामड़ कहीं के, मैं ये कह रहा हूँ मुझसे किस तरीके पर बात करेगा? हाजिर। अच्छा तुम रसूलुल्लाह के लिए कराऊंगा। सबसे पहले आपको जरूरत कराना चाहता हूँ मैं। जानते हो? थानी जानते हो? क्या जानते हो? थानी अब्दुल्ला जानते हो? कारी अब्दुल्ला को? थानी अब्दुल्ला जानते ही नहीं जानते हैं आप? कौन नहीं जानता उस हरामी को? वो तो अपनी किताब अशरफ सवाने में लिख के मर गया कि उसके बाप उसके पैदा होने से पहले नामर्द हो गए थे। उसको कौन नहीं जानता उस हरामी को? सब जानते हैं। लेकिन जो आप हरामी इस्तेमाल कर रहे हो, लगता है कि आप जब से पैदा हुए, जिस रास्ते पैदा हुए, हरामी रास्ते पैदा हुए हो तुम। जनाब उसकी किताब में लिखा है ना, अगर मैं हवाला ना दिखाऊं तो मुझे बीच चौराहे खड़ा। आपकी जबान बता रही है, उनकी किताब बहुत दूर की बात है, आपकी जबान बता रही है। आपसे बड़ा हरामी कोई है ही नहीं। मेरे जुमले से अगर तुमको बुरा लगा तो लगे, अगर मेरा जुमला झूठा हो, गलत हो, तो बीच चौराहे पे खड़ा करके कत्ल कर दिया जाए। आप मत पूछे रहे को मरतबा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये अल्फाज गलत हो, झूठा हो, तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके कत्ल कर दिया जाए। अगर उसकी किताब में ये बात ना लिखी हो, उसके पैदा होने से पहले उसके बाप नामर्द हो चुके थे, नामर्द हो गए थे, उन्होंने एक दवा खा ली थी हाकिम डॉक्टर के कहने पर। जी आप हवाला दीजिए उसका। अशरफ उस सवाने किताब उठा लीजिए। हाँ, सफा नंबर एक मिनट। ये पढ़ना खुद घूम रहा है ये नहीं, मतलब जी अशरफ सवाने और सफा नंबर है इसका 44। 144 सेंड करिए इसी पे। 44। हाँ मेरे पास नेट नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है। ठीक है, नेट मेरा खत्म हो गया है। अच्छा नेट आ जाए तो भेज दीजिएगा। चलो इनको दे देंगे। ये अफजल भाई, अफजल साहब जो है, ये कौन है तुम्हारे? ये तो हमारे खानदान परिवार के ही है। अफजल नहीं नाम इनका हैं। तो इनको बहकाने के चक्कर में लगे हो कि क्या करने के चक्कर में लगे? ये सब खुद तुमको खुद बहका देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इतने इनमें रखते हैं। ये बहकने वाला बंदा नहीं है। अरे एकदम चक्कर कहाँ पड़े, एकदम समझ लो कि एकदम अकेले मजबूत आदमी है ये। बहरहाल मेरी तो बात हुई है उनसे कि वो सुन्नी है और सुन्नी हनफी बरेलवी है, वो देवबंदर नहीं है। कह रहे हैं सुन्नत वल जमात हूँ मैं। हाँ तो अहले सुन्नत वल जमात बरेली वाले हैं कि देवबंद वाले हैं? जरा खुलवाना, जरा बताओ इनको कहाँ वाले हो? बात करा मैं।
ये तो हम देवबंद वाले हैं, तो हमारे घर के हैं सब। हाँ भाई, देवबंद वाले हो तुम? हाँ भाई, नूर हुसैन सब हमारे घर वाले वही हैं ना। नहीं, आपके घर वाले वही हैं, आप कौन हो? हम भी वही हैं। आपने तो मुझसे कहा था कि हम बरेलवी हैं। देवबंदी। अरे आप इनसे बात तो करिए पहले, आप साबित तो करिए। इंशाअल्लाह, तो मैं तो बात कर रहा हूँ। ये मुझसे किसी भी अकीदे पर बात करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अरे बोलिए ना, तो बात कर रहे हैं आप। पहले ना देना शुरू करिए, फिर बोलिए और काफी शुरू कर दी, तो फिर पता चलिए बुलाना शुरू कर दीजिए आप। जवाब ही नहीं दे रहे पूरा। अगर एक आलिम आपसे सवाल करे, पता जैसे मेरी बात समझिए, सुनिए मेरी बात। तुम्हारा मेरा झगड़ा तुम्हारे इल्म पर नहीं है, अकीदे पर है। हाँ, मैंने जितने बताए हमारे लोग। मैं क्या करूँ, आपने कहा मैं देवबंद पढ़ा हुआ हूँ ना, आपने यही कहा ना? है, आपने कहा देवबंद में पढ़ा हुआ, आपने कहा देवबंदियों में, देवबंद में नहीं, देवबंदियों में। देवबंदी में माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, पढ़े हुए हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मैंने आपसे सवाल कर लिया कि एक आलिम, आप आलिम है ना, पढ़े हुए हैं ना? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। एक तालिब इल्म हो? हाँ, और दुनिया देवबंदियत का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, मुझसे किसी अकीदे पर बात कर ले, इल्म गैब हो, हाजिर नाजिर हो, नूरो बशर हो, इख्तियार रसूल हो, खत्म नबूवत हो, किसी भी एक मौजूद बात सुन लीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। बोलिए किस मौजूद पर बात करेंगे? आप आ जाइए किसी वक्त, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात हो जाएगी। नहीं, अभी अभी बात कीजिए। अब लीजिए, आप जब सामने आओ तभी आप बात करेंगे। या हाजिर नाजिर पर बात करेंगे, या इख्तियार रसूल पर बात करेंगे, या खत्म नबूवत पर बात करेंगे? आप किसी एक चीज लेकिन मानने की मादा रखिए, जहालत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानूंगा। हाँ, तो चुन लीजिए, एक मौजूद चुन लीजिए जो आपको आसान लगता हो। आप चुन लीजिए। हम तो क्या कहते हैं कि अल्लाह चलिए, मैं हाजिर और नाजिर का मौजूद चुनता हूँ। हाँ, चुन लीजिए। हाजिर और नाजिर पर बात करेंगे मुझसे? हाँ, बात करिए। चलिए, तो ठीक है, हाजिर और नाजिर पर बात करते हैं। मेरे आका हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है या नहीं? आपका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है? हुजूर हाजिर और नाजिर है? जी हैं? हाँ है। माशाअल्लाह, मगर तुम्हारे देवबंदी तो इसको मना करते हैं। कहाँ मना करते हैं, आप बताइए क्या लिखा है, कहीं दिखा दीजिए। चलिए, फिर तुम्हारा मेरा तो इस पर इख्तिलाफ ही नहीं रहा। तो अब ये बताइए, दूसरा मौजू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की अता से इल्म गैब हासिल है या नहीं? आलिमुल गैब व शहादत आपने पढ़ा है? आलिमुल गैब तो मैंने बोला ही नहीं। नहीं, आपने क्या बोला कि अल्लाह तबारक व तआला की अता से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है या नहीं, मैंने ये बोला। आलिमुल गैब का तो मैंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। आपने कुरान में आयत पढ़ी नहीं पढ़ी है? देखिए, आपने हाजिर और नाजिर मान लिया ना हुजूर को। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कुरान की आयत पढ़ी नहीं पढ़ी, किस बारे में? वही बात, मैंने वो पढ़ी है, मगर मैंने आलिमुल गैब का नाम ही नहीं लेना हुजूर के लिए कि मेरे नबी आलिमुल गैब है। जी, आप मानते हो ना हुजूर को आलिमुल गैब? हम क्या करें, आपने कुरान के आयत के अंदर क्या पढ़ा है? अल्लाह के अलावा कोई जानने वाला है? मैं गवाही दे सकता है? पहले हुजूर के लिए बोलिए, अल्लाह के लिए तो अरे हुजूर नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है, कुरान को मानते नहीं मानते हो? अरे आलिमुल गैबी व शहादा, इसको मैं बाद में छोड़ूंगा, पहले हुजूर के लिए बताइए कि हुजूर। अरे मेरे भाई, पहले अल्लाह के रसूल, पहले अल्लाह के रसूल है, फिर पहले अल्लाह के रसूल है। यहाँ झगड़ा तो रसूलुल्लाह के लिए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप अल्लाह को माने, रसूल मानते हो। फिर वही बात। अरे रसूल है, रसूलुल्लाह नहीं तो मैं क्या कहता हूँ, मैं सारा जवाब दीजिए आप ना। पहले अल्लाह को मानते, रसूल को मानते हो? अरे सबसे पहले तो अल्लाह ही की जात है, तो वही बात करता है, तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ, तुम देवबंदी सब पागल होते हो क्या? हाँ, तुम सारे के सारे देवबंदर पागल होते हो क्या? आपको क्या लग रहा है? पागल लग रहे हो। दरअसल जब पागल कोई हो जाए तो सब पागल लगते हैं। तुम किसी जगह ही नहीं टिक रहे हो। अभी तक कोई काम। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कोई इंसान पागल हो जाता है, जब कोई खाना खाना शुरू कर देता है तो सब पागल ही दिखाई देते हैं। पैखाना खाने लगे हो तुम, टट्टी खाने लगे हो। थानवी जी ने जो उंगली पार हो जाएगी तो तुम जो है हाथ चाटने लगे 3-3 बार। वाह, क्या बात है। हाँ, कहते तो नहीं आपसे, आप जिस बात से गुजरे हो वही आपसे रास्ते में प्यार। आप खुद कह रहे हो मैं जिस जगह पढ़ा हूँ, देवबंदी से रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई करके आया हूँ।
اور انہیں کی सोहबत में रह करके आप क्या कहते हैं उन्हें बदजनी कर रहे हैं, उन्हें बुराई कर रहे हैं। आपसे बड़ा बदखार बदजन इंसान कौन हो सकता है? नहीं जनाब, बदजनी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अरे नहीं हजरत, आज 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 हाजिर जलील क्यों हो रही है? यही वजह है। तुम आज जलील ख्वार क्यों हो रहा है? यही वजह नहीं कर सकते। तुमने रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर माना, मगर तुम्हारे देवबंदी इसका इनकार करते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं, और जिसने हुजूर को हाजिर और नाजिर माना वो मुशरिक है। मगर तुमने मान लिया और तुम अपने अकीदे के लोगों के नजदीक जो है वो मुशरिक साबित हो गए हो। क्यों? हम नबी पर दुरूद देते हैं, नबी दुरूद पहुंचता है, हम सलाम देते हैं, सलाम पहुंचता है। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से अपने किसी उम्मती के पास आ जा सकते हैं या नहीं? हम क्यों नहीं आ सकते हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तुमने तो ये भी तस्लीम कर लिया, माशाअल्लाह। हम ये कह रहे हैं कि जब हम दरूद पर भेजते हैं तो पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह भी अपने किसी भी उम्मती के पास आ जा सकते हैं ना? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम और क्या कहते हैं कि हम दरूद नहीं पहुंचता है, फिर हम दरूद पढ़ते हैं, खुद हुजूर भी सुनते हैं। हम दरूद पढ़ते हैं तो पहुंचते नहीं पहुंचता है? जी बिल्कुल पहुंचता है, खुद हुजूर भी सुनते हैं। तो खुद हुजूर भी सुनते हैं। और हयात ही नहीं है कब्र के अंदर? बिल्कुल हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अकीदा है ना? हाँ, तो आप इल्म गैब पर आ जाइए। इल्म गैब हुजूर को हासिल है या नहीं? किसको? अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं है। इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं है? किसी को हासिल नहीं है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ, कुरान कहता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो 5 खास इल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, जो तुम कहते हो कि 5 खास इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, मैं तो कहता हूँ इन 5 में से भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता किए गए। देखिए, अल्लाह ताला ने बाद मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कश्फ हासिल किया है, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु को बात मालूम हो गई है। और क्या कहते हैं कि उसके बाद कुरान में ये कहते हैं आपको हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादत व रहमान रहीम, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह जानने वाला है। अच्छा, तो कोई कुरान पाक की एक आयत ऐसी पढ़ के बताइए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि मुझे अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता नहीं किया, या फिर कोई ऐसी बता दीजिए। एक मिनट, या फिर ऐसी आयत पढ़िए जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि मैंने अपने नबी को गैब का इल्म अता नहीं किया, या कोई हदीस सुना दीजिए। मैं तो आपने पेश कर दिया, आप कोई हदीस पेश करिए, आप मुझे याद हो। ओहो, मैं तो इल्म गैब के ताल्लुक से बहुत सारी आयतें की बात कर रहे हैं, आप सुनाई बात कर रहे हैं। चलिए तो सुन लीजिए अब। हाँ, सुनेंगे? बीच में तो नहीं बोलेंगे? हाँ, अरे चलिए। क्या खटर पटर कर रहे हो बीच में? कौन कौन बोल रहा है? अरे बच्चे बैठे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। सूरह अल इमरान आयत नंबर 179 यानी 179। और अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि ए लोगो यानी आम लोगो, यानी मेरे और तुम्हारे जैसे लोग, ठीक है जी, ए आम लोगो, तुम्हें गैब का इल्म अता करे। जी, क्या कह रहा अल्लाह ताला? और अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि ए लोगो यानी आम लोगो जी तुम्हें गैब का इल्म अता करे, यानी अल्लाह की ये शान ही नहीं। हाँ, उसके लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। जी, किन में से? हाँ, उसके लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जी जिसे चाहता है चुन लेता है। जी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया और रसूल में से सब में आला और अफजल है जी। तो हमारे नबी को चुना होगा कि नहीं चुना होगा? मैंने क्या कहा? मैं दोनों बात कहने से पहले आपने इनकार किया, आपने इनकार किया। बहुत सारी जगह ऐसी है आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम अलीमुद्दीन है। अलीमुद्दीन साहब, देखिए मैंने आपसे कहा था
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب کا علم حاصل ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ قرآن کی ایک آیت ایسی پڑھ دیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبی کو چپیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا نہیں کیا، یا حضور نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ جی یہ صاف ستھری آیتیں ہیں۔ تو ایسی اگر کوئی آیت آپ کے پاس ہو تو پیش کیجئے، ورنہ آپ کا عقیدہ باطل ہے، کفریہ ہے، کیونکہ آپ قرآن کے خلاف کسی کا عقیدہ، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل ہم مانتے ہیں۔ تو آپ کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، ہمارا نہیں آپ کا ہے۔ میں تو آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا کون کر رہا ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کے لیے نہیں نہیں کہ رٹ کون لگا رہا ہے، میں یا تم؟ میں تو ایک مطمئن کام نہیں کیا ابھی تک۔ ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب شرف حاصل کیا ہے اور بعضوں کو نہیں کیا، لیکن اس کا اختیار اللہ کو ہے نا۔ علیم الدین صاحب ریکارڈ ہو رہا ہے یہ؟ جی یہ میرے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آپ نے جو بولا ہے وہ سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں دوسرے آیت سنیے، بالکل آپ یوٹیوب پہ ڈالیے اب انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جی جو وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا یہ نہیں معلوم تھا، 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 وہ سب اس آیت میں آ گیا۔ جو حضور نہ جانتے تھے وہ سب علم عطا کر دیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کو؟ رسول اللہ کو، اپنے محبوب کو۔ جی جی اب اگر کوئی علم کی بات ہے، ایک منٹ رکیے نا، بیچ میں نہ بولیں، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ سن لیجیے پیار سے۔ بالکل سنائیے۔ علم کی بات ہے تو پھر دوسری آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین، سورہ تکویر آیت نمبر 24۔ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کس کو؟ اپنے محبوب کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو۔ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود غیب جانتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں غیب کی باتیں، سمجھے جناب؟ اچھا چلیے دوسری آیت سنیے۔ اچھا ایک آیت وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں جس میں آپ کی جماعت کے لوگ بڑا اچھل کود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ 5 علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ میں وہ آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ہماری جماعت والے اٹھل کود کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری جماعت والے بہت متفق رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بتائیے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، عقیدے کے اعتبار سے علماء دیوبند ہے ہی نہیں۔ اچھا حضور جانتے ہیں یا نہیں کہ بارش کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ صحیح میں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ صحیح میں؟ اور صحیح میں غلط میں کیا؟ آپ کا کیا؟ میرا نظریہ یہ ہو کہ حضور غوث اعظم یہ جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، تو میرا یہ نظریہ جو یہ عقیدہ ہے یہ ایمان والا ہے کہ کافر والا ہے؟ وہ تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، ہم اللہ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ رسول کے اوپر۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم عطا کیا ہے۔ اللہ کو ہے بھائی، تو یہ بھی غیب ہے، یہ پیٹ کا بچہ بھی غیب ہے، اور میں اسی غیب کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس غیب کا علم عطا کیا۔ جی 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 میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ اگر میرا عقیدہ کہتا ہے اللہ کے رسول کو ہوتا تو اللہ کے رسول حکم دے دیتے ہیں، ہر کام ہو جاتا، اللہ سے دعا نہ مانگتے۔ اچھا تو یہ بتائیے، دعا نہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جیسے آپ بچہ کہہ رہے ہو، آپ بس کہہ دیتے بھائی آپ کو صرف بیٹا ہی بیٹا ہوگا،
अब उस बेटी बेटी हो गया, कभी कहा है अल्लाह रसूल ने? अच्छा तो मुझे अभी ये बताइए कि ये जो मेरा अकीदा है ये कुफरी क्या है या अकीदा बातिल है? अकीदा हमारा दुरुस्त है। अच्छा मेरा अकीदा बातिल है और क्या? अच्छा तो ये मेरा ही अकीदा। आप जब एक मिनट जब आप रशीदा में गंगोही को और क्या कहते हैं कि थानवी को इस अल्फाज से आप पुकार सकते हैं, कह सकते हैं, तो आपसे बड़ा बादल और बजर और क्या कहते हैं कोई हो ही नहीं सकता है। जो 1200 किताबें अल्लाह ताला को इतना इल्म दिया, तस्नीफ फरमाई है, 1200 किताबें तस्नीफ फरमाई है और आज दुनिया से इस्तिफादा हासिल कर रही है, और आप उनको इस तरीके से इस अल्फाज से आप इस अल्फाज से पुकार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे शर्म की इसमें क्या बात है यार, काफिर को तो काफिर ही कहा जाएगा ना, मुसलमान थोड़ी कहा जाएगा। काफिर को काफिर नहीं कह सकते हो तुम? कौन कहता है, कहाँ लिखा है? अरे बिल्कुल लिखा है। चलिए तो दिखाइए कहाँ लिखा है, उसको हम दिखाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, आप पढ़िए, आप ऑनलाइन आप वीडियो पढ़िए, आप बाहर आइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हदीस पढ़िए ना, कोई कुरान की आयत पढ़िए ना कि काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं तो पढ़िए फिर कोई हदीस या कोई जो है कुरान की आयत, तो आप पढ़ दीजिए। तो मैं तो मिनल काफिरीन, इसने अपने ऊपर गुरूर किया और ये काफिरों में हो गया। हाँ वो काफिरों में हो गए ना जी, थोड़ी दी जा रहा है, वो काफिर हो गए। अरे तो काफिर हो गया, उसी को तो काफिर कह रहे हैं हम। ये भी तो गुमान है, क्या कहते हैं कि तो हम उसको काफिर मुसलमान हो तो। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बताइए जनाब अलीमुद्दीन साहब जी, कायनात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म गैब किसी और को हासिल है? किसी को नहीं हासिल है। किसी को नहीं हासिल है ना जी। अच्छा आपका इल्म है? मेरी बात समझ नहीं, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने शुरू में कहा आपसे देखिए अल्लाह के अलावा गैर का इल्म किसी को नहीं। हाँ अल्लाह का इसमें प्यार दे वक्तन फवक्तन, तो फिर अल्लाह की आता से मान लो ना, ये वक्तन और फवक्तन की क्या बातें कर रहे हो? अच्छा एक मिनट, हर बात अल्लाह पहले अभी बच्चे पर रही है। ये वो 5 इल्म है जिनका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के अलावा देवबंदियों के नजदीक किसी को नहीं, मगर हमारा नजरिया है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे। आपका नजरिया आपको मुबारक हो, आपका नजरिया आपको मुबारक हो। हमारा नजरिया ये है कि अल्लाह तआला के आलिमुल गैब है ही नहीं। मैंने आलिमुल गैब का नाम ही कब लिया यार, आप बार बार आलिमुल गैब पे जा रहे हो। मैंने तो शुरू में ही इनकार कर दिया जो आपने आलिमुल गैब का करो, आपको मानना है ही नहीं, आपके अंदर मानने की मादा है ही नहीं, समझ रहे हो? आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने तो हुजूर को आलिमुल गैब नहीं कहा ना, आप मानते हैं ना हुजूर को आलिमुल गैब? किसको? मैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, मैं नबी को मानता हूँ, दूर फेंकता हूँ, नबी पूरी सीरत पे क्या कहते हैं मेरा अकीदा है, मैं उस पर अमल करता हूँ। हुजूर को आलिमुल गैब नहीं मानते तो आलिम गैब तो मानते हैं ना, हुजूर को अल्लाह की तरफ से दिया हुआ गैब तो तस्लीम करते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके से मौलवी साहब जी जी, आपने रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब का अकीदा तस्लीम किया या इनकार किया, ये बताएं। मैंने ये आपसे पहले कह दिया कि आलिमुल गैब क्या कहते हैं कि गैब कहीं रखना, तो अल्लाह फिर आलिमुल गैब पर दौड़ गए, फिर आलिमुल गैब पर दौड़ गए। मैं कह रहा हूँ आम, तुम कह रहे हो इमली। मैंने तो आलिमुल गैब को कहा ही नहीं कि हुजूर आलिमुल गैब है या नहीं। आप अकीदा है, मेरा अकीदा नहीं है वो। अच्छा ये बताइए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं या नहीं कि औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का? अल्लाह के कोई नहीं जानता है। नहीं जानते? नहीं, रसूलुल्लाह नहीं जानते? अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये तो आप बाबा मेरे जानते हैं। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नजरिया है कि हमारे बैठे हुए हैं जो भी पैसा बन चुका है कि एक कच्ची तबील 50 रुपए, पक्की 100 रुपए के, अब इनका कमाना हमारा चल रहा है। अच्छा क्या कहते हैं अलीमुद्दीन साहब, मौलवी साहब, अलीमुद्दीन मौलवी साहब। जी जी बताइए हजरत। मेरा ये अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की अता से ये जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ा है वो। हाँ तो माशाअल्लाह, तो फिर तस्लीम करो ना, मौजिज़े। और देखिए मौजिज़े में और फर्क है। अरे मौजिज़े और को ये इल्म अता किया गया
کہ बारिश कहाँ होगी, कब होगी और किस औरत के पेट में लड़की है लड़का। तो आपने तस्लीम कर लिया ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तस्लीम किया ना आपने, तस्लीम कर लिया ना हजरत मौलवी साहब? जी बोलिए, तस्लीम कर लिया आपने? क्या चीज फिर बोलिए? किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का? ये हुजूर अल्लाह की ताकत की अता से जानते हैं। तस्लीम कर लिया ना? इल्म सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं है। आपको तस्लीम करना, तस्लीम करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर जैसे मेरा ये अकीदा है, ये नजरिया है मेरा, तो मैं काफिर हूँ इस अकीदे के साथ? क्या आप जानते होंगे आप क्या है, मैं क्या फतवा लगाऊंगा? मौलवी साहब पटरी पर नहीं चल रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं। हम भाग नहीं रहे हैं, आप अल्लाह ताला नहीं। अच्छा, मैंने ये सुना था कि आपके प्रतापगढ़ में जो आलिम है, मौलवी हैं जी, तो वहाँ उन लोगों में आप जमात देवबंद के बहुत बड़े हिमार भी हैं। कौन है? आप जी, मैंने सुना आप बहुत बड़े खिलाफ हैं। नहीं, मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े हिमार हैं। नहीं, मैंने सुना आप बहुत बड़े काना। मैं कह रहा हूँ आम, आप कह रहे हो इमली। नहीं, मैं तो आम करता और आम ही कर रहूंगा। खैर, आप अभी तक कोई भी बात का नहीं ठीक से जवाब नहीं दे पाए। आपका कोई वीडियो आप भेजिए। आप अभी तक मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। वीडियो भेजिए, कोई वीडियो भेजूं? जी, तो निकाल लीजिए सोशल मीडिया से, नूर हसन रजवी नेटवर्क बोलिए, नूर हसन रजवी नेटवर्क आ जाएंगी, बहुत सारी ऑडियो आ जाएंगी इंशाल्लाह। नूर हसन रजवी नेटवर्क बोलिए यूट्यूब पे खोल के। आपका आइडिया वीडियो है इसमें? हाँ, निकालिए ना, नूर हसन रजवी नेटवर्क। अच्छा, जब आप पैदा हुए होंगे तो आपने क्या कहते हैं कि पेशिंग कोई की थी, क्या कहते हैं कि आपने बस पूछा था नहीं पेट में बच्चा है कि या बच्ची है? वो तुम्हारी अम्मी ने पूछा था क्या? हम तो हमारा अकीदा यही है ना। पूछा था क्या? लेकिन आपने सीधा के बाबा से पूछना होगा पहले। अब तुम बदतमीजे पर आ गए हो मुल्ला जी। मुल्ला जी शरीफ गए होंगे, मुल्ला जी शरीफ गए होंगे। मुल्ला जी बात कहाँ चल रही है, तुम कहाँ दौड़ रहे हो? अरे बात चल रही है कि मेरा नजरिया, मेरा अकीदा ये। चुपो ना मुल्ला जी। आपको पता लगवा क्या करके मुल्ला जी, जिसका ये अकीदा हो तो हुजूर भी जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है लड़का, वो काफिर है मुसलमान। आप अपने अम्मा के गए थे बाबा के यहाँ, कहाँ गए थे? शमशा गए थे या अजमेर गए थे? देख रहे हैं हजरात, ये हैं देवबंद के मुल्ला जी। आप बताइए तो क्या कह रहे हैं? ये देवबंद के मुल्ला जी हैं जो बदतमीजी बना रहे हैं। ये अपना अकीदा ही जो है सही से नहीं बता पा रहे। आपका अकीदा ही बात है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप बाबा को चक्कर मत पड़िए। आप कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, पर अमल करिए। आप छोड़ दीजिए। आप मुल्ला जी सुने, अगर हुजूर नहीं जानते तो दुनिया में कोई और जानता है? हुजूर के सहाबी हैं और अल्लाह के वली हैं, करीम को नाज़िल किया, आप पढ़िए उसको। अच्छा मुल्ला जी, मुझे ये बताइए, जब रसूलुल्लाह इस बात को नहीं जानते, इस चीज का इल्म नहीं जानते कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, और जानता है? अभी आप और कुछ बोलोगे, आप दिमाग बराबर से नहीं रहा है। हाँ मुल्ला जी, तो ये बताइए ना कि रसूलुल्लाह जब नहीं जानते इस चीज का इल्म, किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, कोई और जानता है? आप प्रताप कब आ रहे हैं? आप बताइए, मुलाकात करते हैं आपसे हम। कि वो रिश्ता विश्ता कराना है क्या अपनी बहन से? जी, अपनी बहन से रिश्ता विश्ता कराना है क्या मेरा? हम बताएंगे किससे कराना है। असल में बिनोई बनाओगे मुझे? मगर मैं देवबंदियों का बिनोई नहीं बनूंगा, मेरी तो पहले से औरत से शादी हुई हुई है। अरे आइए हम क्या बनाएंगे, आप बताएंगे आप क्या बनाना है। हाँ जी, तो मारोगे मुझे? धमकी दे रहे हो? मारोगे मुझे? अरे तुम्हारी माँ ने उतना खून नहीं पिलाया तुम्हें जो तुम मुझे मारो? इतने बड़े आलिम होकर के आप कोई तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया उतना, खून नहीं पिलाया उतना। अरे हेलो, ए सुना तो 4000 सब्सक्राइबर लाइक किए, 21,000 लोग बैठे हैं, इधर पैसे कमाने चक्कर में बर्बाद है। हमको मालूम है किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया ठीक तरीके से। अब सुन अपने मुल्ला की बात, तेरा बाप अशरफ थानवी अपने किताब में सिखाया था, मतलब में लिखता है जिनका नाम अब्दुल्ला खान राजपूत था,
समझे? अब्दुल्ला खान था और कौम के राजपूत थे और ये हजरत के खास मुरीदों में थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और वो ताबीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे क्या कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, जो आप बतला देते थे वही होता था। ठीक है, कब हमारे तेरा बाप अशरफ थानवी गवाही दे रहा है कि जो अब्दुल्ला खान राजपूत बताता था वही होता था। लगा इस पे किसी चीज का फतवा? जब रसूलुल्लाह नहीं जानते कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, तो फिर इसे अब्दुल्ला राजपूत को कैसे पता चल गया? लगा फतवा इससे गुमराही लगा थानवी में फतवा, लगा थानवी में फतवा। गोल गोल घूमते हो शैतानो, शर्म नहीं आती? अरे यार हरामियों, वलदुल ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा इब्न तैमिया की रसूल मानने के लिए जो बकायदे सुना एक बात हरामियों के लिए ये अकीदा मानते हुए मुसलमानों देख रहे हैं। मैंने ये थानवी हरामी की किताब हिकायत बताया, ये इनका बाप थानवी अपनी किताब हिकायत औलिया में लिखता है अब्दुल्ला खान राजपूत का वाकया लिखते हुए कि अब्दुल्ला खान राजपूत के पास जब कोई औरत या कोई शख्स ताबीज लेने आता तो बता देता था कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, हरामियों की हकीकत साले शैतान करेंगे। रसूलुल्लाह के लिए किसी भी गैब का इनकार करते हैं ये हरामी, और ये वो गैब है कि जो माफिल अरहाम के ताल्लुक से है। अब हमारा जी सुन लो भाईजान, हम ये आपसे कह रहे हैं, आप जो चैनल बनाए हैं इस पर ऐड लगाना आप छोड़ दीजिए, तब मैं मानूंगा वरना आप पैसे कमाएंगे। ऐसा है अल्ताफ अफजल भाई, तुम बोल रहे हो ना अफजल साहब? जी जी जी, तुम बोल रहे हो ना? जौन तो बोल रहे ही बोला, अफजल साहब बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बोला। कौन कहता है मैंने ये पैसे बनाने के लिए काम किया है? ये पैसे कमाने के लिए मैंने चैनल बनाया है। तुम्हारी मुनाफे तो ये देखो, एक मिनट, तुम्हारी मुनाफे का इतनी बड़ी कि तुमने मुझे अपने आप को बरेलवी बताया था ना, और तुमने मेरे पास ऑडियो भी भेजी थी, और तुम अब बदल रहे हो। मैंने इनके घर से ये सबूत लगाया है कि अब्दुल्ला खान राजपूत का वाकया लिखते हुए थानवी लिखता है कि जब उसके पास कोई ताबीज लेने जाता तो वो बताता था कि जा तेरे घर में लड़की होगी या लड़का। अरे ये इनका बातिल अकीदा है या हमारा बातिल अकीदा है? अरे ये देवबंद का मुल्ला तो जाने कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, हमारे नबी ना जाने? हमें ये बताइए आप चैनल किस लिए बनाए, इसको मुझे बताइए। चैनल आप किस लिए बनाए? पैसे कमाने चैनल बनाए, इसको मुझे बताइए। नहीं हटाइए आप, देवबंदियों की हकीकत दिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और ये तो ऐड हटा दीजिए, और जो वीडियो डालते हैं इसमें ऐड बनाइए। अच्छा एक मिनट, तो देवबंदियों के यहाँ भी ऐड आता है, देवबंदियों के यहाँ भी ऐड आता है। तो देवबंदियों ने जो चैनल बनाया है पैसा कमाने के लिए बनाया है, देवबंदियों ने चैनल बनाया है पैसा कमाने के लिए बनाया है ना अफजल साहब? देवबंदियों ने जो चैनल बनाया है पैसा कमाने के लिए बनाया है ना? हम मानेंगे इसको भी, मुझे ये बताइए देवबंदियों ने जो चैनल बनाया वो पैसा कमाने के लिए बनाया है?